Namaste, Adab, and a very warm afternoon to one and all present here. I would like to inform everybody to please make yourself comfortable in your seats, bed, wherever you are, and let your ties loose as we are going to begin the show in just a while now. Thank you. Padhai and I, Sana, will be your host for the day as we celebrate the 8th edition and the first online edition of our dearest social culture fest, Umeed 2021. With the theme Education, a Solution to Curb Social Evil, we aim to visualize the socio-political and economic issues prevalent in our societies, highlight their complexities, and emphasize on the society's ability to cooperate and act collectively for the common good. I assure you that this program shall not only be full of exuberance and excitement, but also create an inspiring, intriguing, and provocative atmosphere. Like every other pious occasion, let's start this event by offering our prayers to Ma Saraswati and conduct our customary lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the embodiment of knowledge. For this, we will request our honored principal to come to the stage to light the lamp. May I request Sir Ashutosh Saxena, Honorable Program Officer of NSS Unit of Jai Hind College, to say a few words to kick off the event. Please spam the chat box, guys. All of you for this Umeed 2021. I really appreciate the kind of a participation you have shown for this Umeed activity. I'm very happy that our NSS unit of Jai Hind College celebrate this as an annual day of NSS on a yearly basis. This time, because of the pandemic condition, we have to organize it online. However, I do feel that we have not lost the impact, not the popularity of this event year after year. We have been adding more and more quality towards it. Our core committee, our NSS volunteers, even the non NSS volunteers, even those who are going to join in the coming years, even they have come out with a lot of contribution and with a lot of zeal and enthusiasm for this Umeed. Here, I cannot forget to mention that many of our volunteers are even working, beyond their study time towards the Umeed activities. Many of them are recording the videos and sending us. Even many of them are participating towards what is called as university level events also, not for the hours but for getting the experience, but for getting the exposures. And yes, I must also mention that many of the volunteers says that, sir, we want to Umeed to learn the creative part of it. We want to do Umeed to really be a part of a very active group, right, which has minimum 2 to 3 activities on a weekly basis. With pride, I want to tell you all that while we are celebrating this Umeed 2021, we have already crossed more than 200 activities, right, in our NSS for this year 2021. Of course, majority of them, or I would say almost all of them, were on online basis. But in spite of this kind of a online thing, we have neither lost the touch of the volunteers nor we have lost the popularity of our events. Not only that, forget about popularity, we find that the students, they always carry a message when we have any event. The way they join on timely basis, the kind of a quality questions they asked when they have been, associated with the events, and the kind of advanced preparations they make so that they can always give their best, that really shows that the students are really the soul of our NSS, right? And I promise you, if you all keep on showing so much interest, so much active participation, and so much real involvement in our activities, we can really, really promise towards more quality association, more of experience sharing, more of knowledge sharing, and of course, more of social work promotion. So, thank you to all of you. Wish you all the best for Umeed 2021. Thank you so much, sir. We're really fortunate to have your guidance and support with us. Without you, all this would not have been possible.
Lord Ganesha is always worshipped first at the start of every auspicious event. So how can we forget to worship Ganpati Bappa in the first online edition of Umeed? We request him to grace us all so that this event completes without any obstacles. So let's call upon the stage the first performer, Archana with the Ganesh Vandana. What a stage breaking performance that was. Now, hold your breath for a passionate performance by NSS volunteers on the song Hole Hole. Please show lots and lots of love in the chat box for our next performer. बिखरे टूटे टुकड़े सारे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले बेतुके से सुर वो सारे मिल रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे हौले हौले नन्ही सी एक जान ने अपना बचपन खोया खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया परसों से बहते ये आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले खुल रही आंखें जो अब तक नम रही हैं धीरे धीरे हौले हौले आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे हौले हौले Well, that was quite a tuneful performance, you guys. What's done to children, they will do to the society. We welcome Prerna and Bhavna to recite a poem on child labor. What if we had no chance? What if we had to do this every day? What if we couldn't take a stand? What if we lost our innocence? Do you know how it feels
Do you know our aches and pains? You hear our cries? Do you really know us? Can you change our past? Can you change the reality? Can you make it shine? Can you make it all right? Has time stood still for you? Has it not rained in days? Have you not seen the truth? Have you not hit the dust? Are the stars on your side? Are the skies blue enough? Are you familiar with our lows and highs? Are you doing well all by yourself? If you were barefoot, would you even walk a bit? If you were us, would you turn back time? How is this fair? How many more days like these? How come we are the only ones to suffer? How long till we are happy? When will our flowers bloom bright? When will you hold our hands? When will all this end? When will the world change? Thank you guys for shedding light on such a cruel and unjust system. But let's have a variation. Let's come to the drama of life. Along with all the merriment and happiness of life, it's equally important to depict the harsh truth of reality. Ladies and gentlemen, now it's time to present a special drama performance by the NSS volunteers. अंधेर नगरी के एक छोटे से गांव में रहता था सुरेश बंधु का परिवार। हाल ही में सुरेश बंधु की कोरोना के वजह से मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं इस नाटक की आगे की कहानी। सभी गम में लीन है। बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका है। राजू चाय वाला सुरेश बंधु की मृत्यु की खबर सुन के उनके घर पहुंचता है। सुरेश भाई की खबर सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। बहुत अच्छे इंसान थे वो। क्या आप मुझसे बात कर सकते? जी, सुरेश जी ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे बच्चों के पढ़ाई के लिए। अब तो वो रहे नहीं, तो वो कौन चुकाएगा वापस? भाई साहब, हमारे वही अकेले कमाने वाले थे, हम कर्जा कैसे चुकाएंगे? हमारे पास सच में पैसे नहीं है। वो आपकी तकलीफ है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। चाचा, मम्मी दिन रात बीमार रहती है। आपके जो कर्जे के पैसे हैं, मैं दिन रात काम करके चुका दूंगी। ठीक है, तो कल से आप आ जाइए काम पे। मुन्नी कर्जा चुकाने के लिए होटल में काम करने जा रही है। साहब, मुझे क्या काम करना है? ये ले, अर्जा टेबल में चाय साफ करके आ, वहाँ पे 2 नंबर पे चाय पहुँचा, जल्दी से। हाँ सर। क्या पागल हुई है? काम से निकाल दो, यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। अंधी हो गई तू। अगली बार नहीं होगी ऐसी गलती। निकल यहाँ से। ऐसे ही रहेगा, ऐसे तो नहीं बाप का घर जा। चल साफ कर इसको। मुन्नी के साथ यह व्यवहार कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मालिक के दुर्व्यवहार के कारण मुन्नी रोती सिसक कर घर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में उम्मीद फाउंडेशन के कार्यकर्ता मुन्नी को रोते हुए देखते हैं और उसके आंसुओं के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम मुन्नी है। मैं यही पास की चाय की दुकान में काम करती हूँ। और ये चोट कैसी? मेरे पापा की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे होटल के मालिक से। मैं वही काम करके कर्जा चुका रही हूँ। बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 12 साल की हूँ। वो होटल का मालिक मुझे बहुत परेशान करता है और मारता है। तुम जहाँ काम करती हो वहाँ मैं लेके चली। ठीक है।
एक्सक्यूज मी हो भाई साहब, जी बोलो, कौन हो? इस होटल के मालिक आप ही हो क्या? हाँ, ये मेरा होटल है। क्यों, क्या हुआ? मुन्नी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ काम करो अपना यहाँ से। कैसे बात कर रहे हो भाई साहब? तमीज नहीं है बात करने की। बच्ची की उम्र की है आपकी। आप कौन है मुझे तमीज सिखाने वाले? हम कौन है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा जब तुम जेल जाओगे। उम्र क्या है इसकी? 12 साल होगी, 12-13। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तुम जेल जाओगे। सेक्शन 3 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ेगा, वो तो है। कुछ नहीं देकर सही सब कर दो ना साहब। कुछ मुझे रिश्वत दे रहे हो तुम? बाल मजदूरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो ना, कुछ नहीं देकर सही करो। पहले देके खत्म होगा। वो 12 साल की बच्ची और तुम उसको बाल मजदूरी करवा रहे हो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा साहब। मुझे गलती हो गई साहब। मैं उसका सब कर्ज माफ़ कर दूंगा और मुन्नी की पढ़ाई का जिम्मा मैं खुद उठाऊंगा साहब। उसके परिवार वालों को भी कभी तंग मत करना तुम। नहीं साहब, मैं कभी नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई साहब। जैसा कि आपने इस नाटक में देखा कि हमारे बेहतरीन कलाकारों ने आपके सामने पेश किया एक ऐसा मंजर जो कि हमारे देश में कई जगहों पर पाया जाता है, वो है बाल मजदूरी। आप सभी से हम यह प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो ठीक है? क्या इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या इन बच्चों को अपना जीवन जीने का हक नहीं है? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन क्या हमारा देश सही में प्रगति कर रहा है? किसी भी चीज की प्रगति के लिए उसकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, पर हमारा नींव हमारे भारत देश के बच्चे जो बाल मजदूरी के शिकार है, अगर इन बच्चों को हम जीवन जीने का हक नहीं दे सकते तो हम प्रगति कैसे करेंगे? बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक फूल तब खिलता है जब उसको सही मात्रा में धूप, पानी और सारी ज़रूरतें मिलती रहे। हम अपने आप को समाज में लिटरेट बोल के प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर हम हमारे आसपास हो रहे इन गतिविधियों को नज़रअंदाज करें और उन्हें टाल के उनके खिलाफ ना बोल के चुपचाप हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या हम सही में लिटरेट है? It is high time we stop all these activities from their root, where children do not have to tolerate such injustices and kill their dreams. Child labor is inhuman, insensitive, and intolerable. It was a remarkable depiction of cruelty of laboring a child. We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams. We are the dancers, we create dreams. Please welcome NSS volunteers for a dance show with a huge spam in the chat box, guys. भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी? इसका पैसा कौन? तेरा बाप देगा? नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब। बचाओ, बचाओ, प्लीज।
बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर, तारे ज़मीं पर, कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मा पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत हो बड़ी, हो न जाए तारे ज़मीं पर। बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। An incredible performance on child labor. The dancers held everyone captive. Thank you so much. Now it's time to revive the music buds inside us. It's time for some music therapy. We welcome the NSS volunteers for a moving performance on the song Ek Chilbari. सूरज जैसी चमकेंगी देखी है साडी अखियां ने, ऐ सपने उमरा दे, ऐ सपने उमरा दे, बूंद बूंद मिल जाएंगे, पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समुद्रा दे, फिर नाल समुद्रा दे, असी ऐथे खड़े है जाना परे, न कहूँ हमको तो लसी, जिद ते अड़े जुनूनी बड़े, ए दिल के ने बोल एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, मुश्किल हमें रोकना। शहरों जैसे बन जाएंगे लगते ने जो छोटे छोटे रास्ते गलियां दे,
ऐ रस्ते गलियां दे बूंदों की तरह महकेंगे हौले हौले यारो एक दिन मौसम गलियां दे ऐ मौसम गलियां दे अभी पहचाने कोई है क्या अपना मोल ऐसी जिद ते अड़े जुनूनी बड़े ऐ दिल के ने बोल एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा मुश्किल हमें रोकना रातें है कजले वाली दूर बड़ी दीवाली दिल में ढूंढे अखियां दिल वाली घोंसले में पंछी बना के यारा हमने उम्मीदा रखिया मैंने हाथ ना नहीं है चाहे कुछ भी करे दुनिया. Here is Radha Deshpande to recite a heart-wrenching poem on sexual abuse. नमस्कार, माझे नाव राधा देशपांडे. सादर करत आहे माझी कविता जिचे नाव जखम भरते हळूहळू. आजही घाबरून कोंडलंय तिने स्वतःला, मनातला धसका पचवत. उगा दिलासा देते स्वतःला खोटेच सुरक्षित भासवत. आपण काय करावे याची नाही तीच जाणीव, त्रास होतोय तिला त्या स्पर्शाचा. नव्याने उद्याला सामोरे जाण्याची भीती आणि डोळ्यात पूर आसमानचा. आजही तिला ते सारे आठवते, गुदमरते ती त्या आठवणीने. वाटते सारे डोळ्यांसमोरच आहे आणि थरकापते त्या जाणीवेने. तिच्या मनावरचा आघात लोटतोय तिला निराशेच्या गर्दीत. आक्रंदून मांडलाय भावनांनी गदारोळ अन झुरतीये ती अस्तित्वाच्या स्पर्धेत. कोणता असुरी आनंद मिळतो लोकांना हा प्रश्न घोळतोय तिच्या मनात. कोणता असुरी आनंद मिळतो दुसऱ्यांना हा प्रश्न घोळतोय तिच्या मनात. त्या स्पर्शांच्या असुरक्षिततेने शहारा आल्या तिच्या कानात. पण जाणवलंय तिला जखम भरते हळूहळू. घडी आहे सावरण्याची, लढा तर ती देणारच, न हरता उमेद भविष्याची. Thank you, Radha. Dance is intrinsic to the world. Perhaps this is one of the reasons why that dance also makes for a powerful medium to comment on the ways of the world. Let's get ready for an intriguing performance on abuse. ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना. किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे. हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए. हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी. किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना. ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे.
अपना गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे गोरी चिड़ैया. Whoa, that truly hit home. Thank you for such a compelling performance. You know, 1 in 9 girls and 1 in 53 boys under the age of 18 experience sexual abuse or assault by the adult. Here are the NSS volunteers to present a drama performance on this urgent issue. इसी तरह मुन्नी का जीवन सुखमय चल रहा था. मुन्नी अब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसका एक छोटा भाई राकेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था. परंतु राकेश के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. एक दिन राकेश स्कूल से घर लौट के आता है और उसकी माँ बाजार गई होती है और उसके चाचा का बेटा घर पे कुछ दिनों के लिए घूमने आया होता है. मुन्नी और उसका छोटा भाई राकेश स्कूल से आते हैं. अब आगे देखते हैं. राकेश, आज कक्षा में क्या सिखाया? अच्छा। ओह, दीपक भैया आए हैं, कैसे हो? सब बढ़िया, आप कैसे हो? कैसे आपकी माता जी सब ठीक है क्या? सब ठीक है। चलो मैं हाथ को धोकर आती हूँ, आप लोग बात कीजिए। क्या कर रहे हो राकेश? सब बढ़िया. कब ना क्या कर रहे थे? क्यों? तो हम लड़के ही तो, आप डर क्यों रहे हो? मेरे सामने तो बदल सकते हो ना. तो बदलो, क्या हुआ आपको? डर क्यों रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है आपको? खड़े रहो. क्या हुआ? डरो मत. अगर ये तुमने किसी को बताया तो समझ लेना तुम्हारी पूरी इज्जत मौत हो जाएगी. एक दिन राकेश की माँ सुनीता राकेश के हाथ में कुछ जख्म के निशान देखती है. हाँ मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, राकेश आजकल बड़ा गुमसुम रहता है. स्कूल में किसी ने उसे डांटा है? किसी ने कुछ बोला उसे? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में. अभी भी शांति बैठा है. आओ देखते हैं क्या हुआ. चलो. राकेश बेटा, सब ठीक है ना? तुम जरा उदास उदास से लग रहे हो आजकल. कुछ नहीं. और ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं, बस गिरते गिरते लग गया. ये चोट? कुछ मामूली सी चोट है, बस ठीक हो जाएगी. सच में ना? हाँ. राकेश की माँ ने वो जख्म राकेश के बदन पे बहुत बार देखा. जब वो यह बात राकेश से पूछती तो राकेश ये बात टाल देता. एक दिन राकेश की माँ ने राकेश को रोते हुए देखा. राकेश बेटा, ये पीठ पे निशान कैसा था? कुछ नहीं, मैं उसे कहा था. उस दिन भी हाथ पे खेलने खेलने लग गया था, आज भी पीठ पे खेलने खेलने लग गया. रोज खेलते खेलते कैसा लगता है? सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं माँ, दीपा भैया कुछ दिनों से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं. ये क्या बोल रहे हो तुम? जी माँ, उस दिन आप बाहर बाजार गई थी तब उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और काफी दिनों से वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं. बैठ जाओ बेटा. अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं माँ, उस दिन आप जब बाजार गई थी दीपक भैया ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की और वो काफी दिनों से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं. माफ कर दो माँ. तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मेरी गलती है, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की. हम उस दीपक को ना सबक सिखाएंगे. दीपक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राकेश के साथ ये सब करने की? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया उसके साथ. पूछ लो उसको. क्या पूछे? उसने सब कुछ मुझे सच सच बता दिया है. क्या बताया? बता. ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो, समझे ना? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे मासूम से भाई के साथ ऐसा करते हुए? क्या कर लोगे अगर किया भी तो? कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग. बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. अभी पुलिस को कॉल करती हूँ. मेरे पैर के नीचे हो तुम लोग सब. हेलो पुलिस. किस गलतफहमी में हो तुम? सुनीता ये सब गलत होते हुए नहीं देख सकती थी अपने बेटे के साथ. इसलिए उसने पुलिस को बुलाने का निर्णय लिया.
यहाँ से पुलिस को किसने फोन किया था? मैंने किया था। क्या? यही वो गुनहगार है जिसने मेरे बेटे के साथ गलत सब किया है। साहब खोटा बोलता है। दिखाओ क्या हुआ? ये देखो हाथ में निशान है, देखो पीठ पे भी निशान है। और तुम बोलो तुमने गलत नहीं किया। साहब कहाँ? मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब मैंने नहीं किया है। बेटा तू चल। अच्छा है। अच्छा सबक सिखाना। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे बेहतरीन उम्दा कलाकारों ने ऐसा दृश्य पेश किया है जो हमारे समाज में हो रहा है, पर उस पर इतनी चर्चा नहीं होती, उस पर उतना प्रकाश नहीं डाला जाता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये सब सही है? क्यों सबूतों के अभाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? आखिर क्यों ये चीज़ बोली जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता? You are not a victim for sharing your stories. You are a survivor setting the world on fire with your truth. Hashtag not sexual abuse. Hashtag every feeling counts. It was heavy and yet necessary, as it opens up the space to have conversations around the issue of sexual abuse. So thank you, volunteers. It was heavy and yet necessary, as it opens up the space to have conversations around the issue of sexual abuse. So thank you, volunteers. लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाल है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, नाए के बंदे भी हो गए बंद, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। Hands down, a truly mesmerizing performance. शिक्षा एक ऐसा प्रभावशाली हथियार है जो संपूर्ण जीवन का आधार है। शिक्षा दो तरह के लोगों को जन्म देता है, देश की उन्नति के लिए आदर्श समाज और देश की दुर्गति के लिए घटिया मिजाज। बालपन से ही हमने शिक्षा को दी थी प्राथमिकता, यह सोचकर कि देश की तरक्की होगी और होगी हमारी एकता। पर क्या किसी ने एक नज़र इनकी ओर घुमाया है जिन्होंने शिक्षा को एक ढोंग के रूप में अपनाया है, जिन्होंने सारे ही जीवन में केवल भ्रष्टाचार फैलाया है, जिनका शिक्षित होना केवल एक कला है, असल में इनका जीवन धाक फैलाने में ढला है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया, जांच कराने आए स्वस्थ को बीमार बना दिया, समाज के समूहों के बीच दीवार बना दिया, एक मासूम के उजले जीवन को अंधकार बना दिया और आवाज उठाने गए तो उसी को गुनहगार बना दिया। इतने मूर्धन्य पद हैं इनके, बोली इनकी मरण, फिर भी इनके विचारों से आती है दुर्गंध। निरक्षर के लिए तो सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसे भ्रष्ट साक्षरों के लिए क्या फरमान है? मेरी नजर में तो सच्ची शिक्षा उसे मिली है जिसका शरीर सदा हो उसके अंकुश में, जिसकी बुद्धि शुद्ध शांत और इंद्रियां हो उसके वश में, जिसका ज्ञान प्रकृति के नियमों से हो भरपूर, जो बुरे कामों से नफरत और न्यायदर्शी में हो प्रचुर। अंत में इतना ही कहूँगा कि जो मनुष्य अपनी शिक्षा से कर सके अपने विचारों का निर्माण, ताकि उसे मूर्छित न करे लालच का कोई बाण, जो मनुष्य करता है अपने चरित्र का सदुपयोग, वास्तव में वही है शिक्षित कहलाने योग्य। Thank you, Durgesh, for that very thought-provoking and inspiring piece. Now, next in line, we have a captivating and exciting performance
the last dance performance of Umeed 2021 by NSS volunteers. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के मां ने है जम्मिया एक सूरमा 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 जो उठेगा धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा बात बात पर है घात मौत की बिछी भी साथ उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज आंधी है ये जलजला है पूरे जोर पर चला है किस्मत दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you Thank you for such a fantastic performance. And we have a massive spam in the chat box, guys, for these phenomenal singers out here. Fashion has always been repetition of ideas, but what makes it new is the way you put it together. Every day is a fashion show and the world is your runway. So audience, we have a real treat for you today. Within few moments, you will get the chance to see our lovely participants exhibiting some of the most alluring outfits. This show isn't about looking good, but about loving yourself in every shade, every skin tone, and every color, and expressing and embracing your inner beauty. So guys, it's time for the ramp walk.
I stand against racism. Wow, not only innovative way of depicting the deep-rooted irrational and destructive discrimination based on race, but also showing us the possibility of accommodating and respecting these differences through fashion. Thank you for this eye-opening show. Thank you for such a fantastic performance. Audience go crazy in the chat box. Whoa! Now we welcome Ekta to deliver a monologue. उस वतन के हम निवासी हैं जहां आरंभ होने से पहले ही लोग मारे जाते हैं। उनकी अंदरूनी भावना दिल में ही दफन हो जाती है। एक जीवन पाने के लिए वह भी विकल्प हो जाते हैं। नाम, जन्म, छाया, रस्ल के आधार पर रहता है नाम। समाज के प्रावधान में बटा है और कहते हैं इसे शान। आइए बात करते हैं उन सामाजिक बुराइयों की जिन्हें दुनिया अपना गुरूर मानती है। शुरुआत होती तन शर्मसार से, बाल शर्म से लेकर जाति व्यवस्था के हाल में। गरीबी, यौन शोषण, बाल विवाह, निराधर आलोचना करके चाहते हो इससे बचना। डाल प्रकाश इन सामाजिक बुराइयों पे, निंदा ना कर तू भी आएगा कभी इनकी चपेट में। बढ़ा खुद की शिक्षा, पैसों की नहीं कर ज्ञान की भिक्षा। न केवल शिक्षा हमारे चरित्र को ढालने में मदद करती है, बल्कि हमें दुनिया को देखने के लिए एक नया दृष्टिकोण देती है। इन सामाजिक बुराइयों के प्रति हमें जागरूक कराती है। जिन सामाजिक बुराइयों का यहाँ प्रदर्शन किया गया और जिन्हें हम दोषपूर्ण मानते हैं, उन्हें राष्ट्र बल से प्रभावित न करके इन संस्थानों में शिक्षा के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, कर्म और धर्म दोनों बनाती, कर्तव्य निभाना भी यही सिखाती। धन्यवाद। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत में हर दिन 109 बच्चों का यौन शोषण किया गया, जिसमें पहले वर्ष से इस तरह के मामलों में 22% की वृद्धि देखी गई। हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 32,608 मामले सामने आए, जबकि 29,827 मामले 2018 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। एक छोटे से नमूने के सर्वेक्षण का उपयोग कराते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार भारत में हर साल 72 छोटे इलाकों से लेकर 1 लाख नाबालिगों के साथ बलात्कार होता है। इनमें पीड़ितों की रिपोर्ट कराने वाले पीड़ितों पर पुलिस से दुर्व्यवहार और अपमान का आरोप लगाया जाता है। भारत में नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में तस्करी दी जाती है। इस प्रकार नाबालिगों का बलात्कार पीड़ितों के जीवन काल में हो जाता है। नाबालिगों के साथ यौन तस्करी और अपराध पर मैपलक्रॉफ्ट द्वारा अध्ययन की गई देशों में भारत 7वें सबसे खराब स्थान पर है। वह पंक्ति याद आती है मुझे, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लूटी है अगर एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है।
बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बातें मजहब की, लड़ो मिलकर इन दरिंदों से, यह हिंदुस्तान सबका है, यह हिंदुस्तान सबका है. That performance really brought out the grim realities of this burning issue prevalent in our society. Thank you, Ekta. And finally, to wrap up, we have a soulful music performance on Jile Zara. सच है समय का भी सब दोष है, धड़कन धड़कन दिख कम रहता है, ओ जाने फिर भी दिल क्यों कहता है, जीने जरा कहता है दिल, जीने जरा हम सफर हम पास आके जरा है जिंदगी मानो दर्द भरी, फिर भी इसमें ये राहत भी है, मैं हूँ तेरा और तू है मेरी, यूं ही रहे हम ये चाहत भी है, फिर दिल के दिल से पुल क्यों टूटे हैं, क्यों हम जीने से इतने रूठे हैं, या हम दोनों जी भर के रोए, ओ आज के दरवाजे हम खोले, जीने जरा कहता है दिल, जीने जरा हम सफर हम नवा पास आजिले With that beautiful performance, we have arrived at the end of this occasion, that is Ummeed 2021. We are greatly appreciative of the fact that all of you all gave your best and made this show a huge knockout. So let me take this moment. A lovely and warm good evening to all those lovely people who have came till here to the end of our socio-cultural fest, Ummeed, which was a 2-day fest for the first time. It's a matter of pride for me that I am here proposing a vote of thanks on the behalf of NSS unit of Jai Hind College. I first of all would like to express all my thanks to the Almighty Superpower. I would like to thank our principal, Dr. Ashok Wadia sir, who gave his vital time from his busy schedule to embrace the occasion. I would like to thank all our teachers who always motivated us to achieve new milestones. I would like to thank our program officer, Professor Ashutosh Saxena sir, without whom it would not have been possible to conduct this amazing fest. I am very fortunate to thank all the members of core committee and the volunteers of NSS unit of Jai Hind College who are very well dedicated towards their task and are result oriented. Not just the volunteer of NSS unit of Jai Hind College, but the volunteers of all different colleges from Mumbai district are very well dedicated toward their task, as they have been an important part of this event because their participation is utmost important for this fest to be a grand fest. I cannot just give thanks to everyone for all their participation and all. So rather than just saying thanks, I would like to show all my appreciation towards each one of you who has been a part of this amazing journey of our 2-day fest, Ummeed. Once again, I would like to state that we, the whole NSS unit of Jai Hind College, is glad and grateful towards each one of you who has been present with us and boosted our morale. Your presence has been a pronounced pleasure. This was all about this event, that is Ummeed 2021. We hope you all have enjoyed this enlightening occasion. I, on behalf of NSS unit of Jai Hind College, thank all of you all for attending and remaining with us during this enlightening event. I am especially thankful to Sir Ashok Wadia for his cordial joining. It really proved encouraging for all of us. I express gratitude to the organizers who work round the clock to make this program successful.
I thank all those who implicitly or explicitly became the part of Ummeed 2021. And finally, I thank the volunteers for their much put in hard work and contribution towards this event. We hope it created a space for gaining new insights, reflection, and finally an urge to indulge in actions for the betterment of the society. Thank you once again, all of you. May Lord continue to bless us all. Peace out until we meet again for Ummeed 2022, hopefully offline. Thank you.